चलिए, तो यू कैन लास्ट क्लास तो आप में से कोई नहीं था, लेकिन क्लास आपने वॉच की होगी लास्ट टाइम भी यूट्यूब पर। यस सर। ठीक है, तो यू कैन नाउ वॉच प्रीवियस क्लास and I will started that for the next topic for the previous classes. Previous classes I was cover the topic of the organization of production, and I will discuss the production step to produce the any product and services like मैंने बताया कि first of all I will require the land and labor and physical capital. ठीक है, and physical capital are two forms and human capital. When previous classes I will discuss that the organization of production at the village of Palampur. Palampur village has the organization of production of requirement of any product and services are the five elements. First of all, the land, and second requirement is labor, and third requirement is physical capital. And physical capital are two forms, fixed capital and the working capital. I will discuss in the previous classes. Okay, and why land is fixed I will discuss in previous class, and the prime and the production capacity of Palampur Gaon was 100% and 75% of the land acquisition was acquiring by the rich farmers, and remaining 25% यानी कि 1/2% is जो कि है सारे का सारा जो पुअर पीपल्स हैं उनके पास जो है लैंड एक्विजिशन था. And the 1960 the cultivation was started in the Palampur Gaon, and I will discuss the next topic in this class. This is the and I will discuss also the green revolution in the previous classes, and you will read the book and और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक, विल द लैंड सस्टेन. विल द लैंड सस्टेन, लैंड जो है वो एक सस्टेन है, मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, देयर आर मेनी नेचुरल रिसोर्सेज बट आई विल डिस्कस इन दिस क्लास is the land is the fixed capital resources, and land is a limited because earth has a 2/3 part of the 2/3 part has an water and 1/3 part is only the land. ठीक है, and so land are limited because land एक रिसोर्सेज है, और लैंड पर हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम कर सकते हैं. जैसे लाइक हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, हम यहाँ पर गोडाउन बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं. देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर द यूजेस ऑफ लैंड. ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर environment like soil fertility, groundwater and build up the many years. आप सभी को पता ही है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनने में. जैसे कि आप बात करते हैं एनवायरनमेंट जो हमारा आसपास बना हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. जो रिसोर्सेज है, जो रिसोर्सेज सॉइल है या वाटर है या फर्टाइल लैंड है आपके पास, फर्टाइल लैंड में भी आपको बहुत ज़्यादा जो है टाइम लगेगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं जो फर्टिलिटी होती है. फर्टिलिटी आर इम्प्रूव्ड बाय द केमिकल fertilizers in recent times, and Palampur village has also used the fertilizers to fertilize the land. And yes, बोलिए.
बच्चे अपना अपना माइक ना म्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज आ रही है तो आप माइक करके रखेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, बाकी मनीष और रोहशान आप भी अपना माइक म्यूट कर दीजिए, जिससे आपको भी क्लास में अच्छे से समझ में आएगा और बाकियों को भी आवाज नहीं आएगी बाहर की। ठीक है, तो म्यूट करके रखिए। जब भी अगर आपको कोई डाउट पूछना हो तो आप मुझसे माइक अपना अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे। आगे हमारे पास आता है कि जो अर्थ है, ठीक है, वहां पर हमारे पास हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की पिछली क्लास में डिस्कशन किया था। आई विल डिस्कस द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द प्रीवियस क्लासेस एंड आई विल inform that green revolution is only affected the some states of India like Punjab, Uttar Pradesh and Maharashtra and western part of the Uttar Pradesh only, Haryana. ठीक है, so it's affect only the main areas of the India and it's not fulfillment of the food requirement for whole country. ये पूरी कंट्री के लिए हमारे पास जो है रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाया, बट आई विल 1965 आई विल द independent, fully independent on the America for food grains products, but dependency was finished on the 1965 after the Green Revolution is come in the 1966 and it was come to the 2 decades, 1966 to लेट 1980s, तो लगभग 20 सालों तक ये जो है हमारे देश में रहा, तो वहां पर ये जो है बेनिफिट हमें देखने को मिला। ठीक है, अब हाउ लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ द पालमपुर एंड पालमपुर लैंड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द 2/3 पार्ट ऑफ द रिच फार्मर्स एंड 1/3 पार्ट ऑफ द पुअर फार्मर्स। सर, हाँ यस सर मेरा एक सवाल है। सर हरियाणा और पंजाब सब में सर ये ग्रीन रेवोल्यूशन ज्यादा काम किया था, मतलब सर हरियाणा और पंजाब में हम लोग ज्यादा पाते हैं फसल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है वो ज्यादा फर्टाइल है और वहाँ पर अमीर थोड़े किसान रहते हैं, इस वजह से मैंने बताया था ना, अमीर किसान ही ज्यादा बेनिफिट उठा पाए इसका। ठीक है, यस सर, यस और कोई डाउट? सब के ये कर क्या? नो सर। ठीक है, ओके। आपकी आवाज कट कट के आ रही है सबकी, पता नहीं क्यों। चलिए देखिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो देर आर 450 families in the Palampur गांव and 150 families are most than Dalit families and there is no land, there is a no land and it's called landless and they are work from the rich farmers land on farming and earn some money। ठीक है, एंड आगे हम बात करते हैं कि फैमिलीज जिनके पास 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास स्मॉल जमीन है, लेस देन 2 हेक्टेयर। ठीक है, एंड द कल्टीवेशन आर वेरी स्मॉल एंड सो इनकम सोर्स आर वेरी स्मॉल अगेन। एंड इन 1960 गोविंद वाज अ फार्मर विच 2.25 हेक्टेयर्स ऑफ द लार्जली अनइरिगेटेड लैंड। इसके पास लैंड था 2.25 हेक्टेयर्स, जो कि बड़ा था लेकिन वो अनइरिगेटेड था, वहां पर इसके पास कोई भी इरिगेशन की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं थी, जिसकी वजह से उसका कल्टीवेशन ऑफ लैंड बहुत कम था, फर्टिलाइजेशन बहुत कम होता था और जो क्रॉप्स है उसकी ग्रो बहुत कम हो पाता था, जिसकी वजह से उसकी जो यील्डिंग है वो यील्डिंग बहुत धीरे धीरे क्या होते जा रही थी, कम होते जा रही थी। ठीक है, एंड द फार्मर्स मैनेज द फीड्स टू द लिटिल बिट एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम द बफेलो, है ना। अगर उनको कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, जैसे गोविंद की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो वो लोग अलग अलग तरीके की फार्मिंग करते थे जिसमें एनिमल हस्बेंड्रीज आ जाता है या फिर आपके पास आ जाता है गार्डनिंग आ जाता है या फिर आपके पास फिशिंग आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स वहां पर हमें जो है वो देखने को मिले कि गोविंद ये सारे की सारी चीजें भी करता था। तो उसने अपने प्लॉट्स को अलग अलग जगहों में बांट रखा था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हम एक एरिया दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ पर एरिया में देख पा रहे हैं कि दिस लैंड वाज डिवाइडेड इनटू द मैनी पार्ट्स एंड I will grow the many types of crops in the different parts of these land
and I will grow some crop like wheat in this part and rice in this part, and I will grow some vegetables in this part, veggies, and some fruits in this part. So सर uh, बाजरा क्या? सर बाजरा हाँ, बाजरा कुछ भी आप कह सकते हैं, तो मतलब अलग अलग बाजरा तरीके। भी ग्रो करो। हाँ, बाजरा भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस तरीके से क्रॉप्स में वैरायटी आती है और वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन, एंड so farmers are benefited more because some crops prices are very low, then farmers are उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, इस वजह से वो जो है किसी और फसल से ज्यादा बेनिफिट भी उठा सकते हैं वहां पर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हो सकता है। तो अगर हमें पता चलता है कि लगभग 60 फैमिलीज, मतलब 240 फैमिलीज आर वेरी स्मॉल, ठीक है, उनके पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, बट 60 फैमिलीज आर मीडियम प्लॉट ऑफ लैंड, एंड रिमेनिंग फैमिलीज आर उनके पास बहुत ज्यादा मतलब जमीन है, जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन है, आर फ्यू फार्मर्स हैं, ठीक है, फ्यू लार्ज फार्मर्स हैं। तो आप इस पिक्चर को देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप जो है फील्ड में वीट की क्रॉप्स को प्लग करते हैं, प्लग लॉन्च करते हैं, और उनको किस तरीके से इंसेक्टिसाइड्स कल्टीवेशन ट्रेडिशनल मेथड्स को आप अपनाते हैं। तो ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जहाँ पर आप ऑक्सेस वगैरह का यूज हल वगैरह से जोता करते थे, इस तरीके से पानी का छिड़काव या फिर दवाइयों का छिड़काव करना, तो ये पुराने मेथड हैं। बट हम ट्रैक्टर्स का यूज कर रहे हैं जैसे जैसे, इट इज अ मॉडर्न मेथड, एंड आई विल यूज द मॉडर्न मशीन्स फॉर द फार्मिंग the more product, ठीक है, more production, and modern technology are helps to grow more production in the uh, in these times, ठीक है। And cultivated area and the number of farmers, cultivated area is 36% of the small farmers, and the 64% for the large and medium farmers, ठीक है। Small farmers are who those land plot has 2 hectare, less than 2 hectare, and medium and large farmers are those farmers who have more than 2 hectare land plot, ठीक है। Number of farmers, 20% is the small farmers and 60% is the large medium farmers, ठीक है। Who will provide the labor, ठीक है। सबसे पहले हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी होता है लैंड, लैंड के बाद आता है आपके पास लेबर। तो क्वेश्चन विल अराइजेस दैट हु विल प्रोवाइड द लेबर, एंड हाउ लेबर आर हेल्पिंग टू ग्रो द प्रोडक्ट्स या ग्रो द क्रॉप्स या यील्डिंग, ठीक है। तो किस तरीके से हमारे पास ये आते हैं और कहाँ से हमारे पास फार्मर्स आते हैं। तो जो लेबर्स हैं वो उन फार्मर्स में से ही निकल के आते हैं जिनके पास, जो लैंडलेस हैं, जिनके पास जमीन नहीं है अपनी, तो वो खुद ही जो है वो ग्रो करते हैं और दूसरे की जमीन पे जाकर वहां पर खेती करना पसंद करते हैं, जिससे उनके लिए ये बेनिफिटेबल हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर द स्मॉल फार्मर्स, ठीक है। ये स्मॉल फार्मर्स को हायर करते हैं एज अ लेबर, और लेबर वहां से अराइज होता है, बड़े बड़े लोगों की जमीनों में काम करने के लिए लेबर आता है, तो लेबर की भी इस तरीके से हमें जरूरत पड़ती है। आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर बताई गई है, इस स्टोरी को हम जान लेते हैं। It is difficult to find work these days. Only the large farmers hire us, and that too for the very limited number of days. तो limited number of days में वो काम देते हैं, बहुत ही कम काम अवेलेबल है। And this woman tells us, Ghanshyam, the larger farmers has just bought a harvester, so we are going to get even less work during the harvest season this year. Last year I worked for less than 5 months in the whole year. So this is a very big problem, and farmers get only job at least 4 to 5 months only for the harvesting, only for the time of the harvesting the crops. And next farmers will discuss that we have the tractor, plugging, harvester for harvesting, thresher for threshing, even for the removing weeds some farmers spray pesticides.
ठीक है, पेस्टिसाइड्स या वेस्टिसाइड्स कहते हैं हम लोग. And this year I will be have look to for the work the brick making unit in the Raiganj. And this lady was tells us that I will work on the brick making plant and it's situated in the Raiganj. So I will work the remaining year and 4 to 5 years work on the large farmers land, and remaining months I will work for the plant of bricks making unit. And I own the local money lender, and 2000 I had taken 1000 last summer when no work has been available in the field. How I ever repay, I hardly earn enough for the 2 square meals. ठीक है, तो मतलब इसकी इनकम उस वक्त बहुत कम थी, जिसकी वजह से वो कह रहा है कि हम अब मैं अपने 2 वक्त की भी रोटी को मतलब नहीं निकाल पा रहा था, जिससे मुझे ज्यादा बेनिफिट हो सके और मैं अपने लिए खाने के लिए जुगाड़ कर सकूं और बाकी अपनी फैमिली के लिए भी कर सकूं. माय सिचुएशन इज नॉट मच बेटर ड्यू टू द पास्ट डेब्ट. द मनी लेंडर रिफ्यूज टू गिव मी एनी मनी लोन because many money lenders are not give the loan for the many farmers because of debts are increasing, and farmers to unable to repay the any loan amount, and also the interest amount sometimes. So farmers are so lender जो money lenders are not given that the loan. ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा, यहाँ पर सिचुएशन को बताया हुआ है कि क्या सिचुएशन है. तो लेबर सेट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ द 60 पर डे. अब देखिए क्या होता है, पालमपुर गांव जैसे गवर्नमेंट होती है तो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होती हैं, एंड गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द एम्प्लॉयमेंट टू पुअर फैमिलीज and poor farmers, and government gives the guarantee to work 600 days in a year. तो एक साल में कम से कम 100 दिन काम देने का जो है गारंटी देती है. तो इसी तरीके से ये तो हम रियल लाइफ सिचुएशन की बात कर रहे हैं, बट इन द पालम गांव मिनिमम वेज ऑफ द फार्मर set by the government is 60 rupees per day, but the dala gets only 35 to 40 rupees. There is a heavy competition for work among the farmer laborers in the Palampur, so people agree to the work of the lower wages. तो यहाँ से हमारे पास निकल के आता है एक पॉइंट कि अगर लोग कम वेज में भी काम करने के लिए तैयार हैं तो उसका रीजन क्या है. उसका रीजन है क्योंकि वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है. वेज रेट कम इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत सारे किसान कम लोअर वेज रेट में भी वर्क करने के लिए तैयार हैं. ठीक है, तो डाला कंप्लेन्स अबाउट द सिचुएशन ऑफ Ramkali, who is the another from the laborer. Both Dala and Ramkali among the poorest people in the village. तो हम कह सकते हैं ये भी poorest people in the village में आ रहे हैं हमारे पास. तो इस तरीके की सिचुएशन थी. Capital needed in the farming. Next topic आता है. First of all, I will requirement of the production and the organization of the production. First requirement is land, and the second requirement was the labor, and the third requirement was the capital. And capital are the mostly two types. Capital is the fixed capital and the working capital, and fixed capital is those capital are not finished, are not removed for one place to another place, and it's not finished to produce more and more unit. But the working capital are those capital who are finished for working more and more crops, yeah, more and more units of the product and services. So mostly small farmers to borrow the money. Sir, हाँ बोलिए. sir, what is physical capital? Physical capital. Physical capital are those capital who you can see and touch. There are two types, working and the fixed capital. Okay. Type. Some definition of physical capital. Physical capital are physical capital are those capital which are you can see and touch, and you can use the produce the more product.
ठीक है, ओके सर। उसे आप छू और देख भी सकते हो, वो फिजिकल कैपिटल है, वो दिख एग्जांपल रही है, देके फिजिकल फॉर्म में है वो आपके पास। ठीक है, सर सम एग्जांपल्स। सम एग्जांपल्स लाइक, बिल्डिंग्स। हाँ, बिल्डिंग्स, लैंड, ठीक है, ट्रैक्टर, these are physical capital, and these physical ओके capital are divided into the two parts. First of all, fixed capital, and second is the working capital. And mostly small farmers borrow the money to arrange the capital. ठीक है, तो बहुत सारे छोटे छोटे किसान हैं जिनको अपनी कैपिटल अरेंज करने के लिए किसी से बोरो करना पड़ता है मनी को। और अब जो कैपिटल वो बोरो कर रहे हैं वो प्रोडक्शन के लिए ही तो कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन के लिए कैपिटल बोरो करते हैं अलग अलग सेक्टर से। ठीक है, तो वो जाते हैं मनी लेंडर्स के पास, मनी लेंडर से लेते हैं, और उनके पास जो सप्लाई है वेरियस इनपुट्स की कल्टीवेशन के लिए वो उनके लिए लेते हैं, या फिर उनको चाहिए सिंचाई की सुविधा के लिए, जमीन पे बीज डालने के लिए, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स परचेज करने के लिए, तो वो जाते हैं लैंड मनी लेंडर्स के पास और टेक अ लोन एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट एंड they given the rate of interest on their loan amount, it is very high, so farmers इस वजह से बहुत ज्यादा लॉस में भी कभी कभार चले जाते हैं, क्योंकि क्रॉप्स ग्रो नॉट मच मोर देन द इन्वेस्टमेंट, जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी कभी कभार उससे ज्यादा उनकी क्रॉप जो है वो ग्रो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो नुकसान में चले जाते हैं। एंड सविता इज अ स्मॉल फार्मर, एंड सविता की स्टोरी बताई गई है अब। तो सविता भी एक स्मॉल फार्मर है जिसके पास स्मॉल प्लांट है कल्टीवेशन के लिए, और मतलब वो वीट को कल्टीवेट करना चाहती है, 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, तो स्मॉल फार्मर है वो। बिसाइड सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, शी नीड्स कैश टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो उसको कैश की रिक्वायरमेंट है जिसके लिए वो अपनी सारी फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। ठीक है, एंड वर्किंग कैपिटल भी चाहिए। वर्किंग कैपिटल कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ द 3000 रुपीज, 3000 रुपीज की उसको मिनिमम वर्किंग कैपिटल चाहिए। शी डज नॉट हैव द मनी, सो शी डिसाइडेड टू बोरो फ्रॉम द तेजपाल, अ लार्ज फार्मर। तो वो तेजपाल सिंह से जो है वो बोरो करने के लिए सोच लेती है और कहती है कि मैं इससे जो है वो, ये बड़ा फार्मर है, ये मुझको कुछ पैसे देगा जिससे मेरी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो पाएंगी। And Tejpal is agreed to give the Savita loan at the interest rate of 24% for the 4 months. 24%. It is a high interest rate. समझ रहे हो ना, मतलब 100 रुपीज में आपको पर मंथ 24 रुपीज का इंटरेस्ट देना होगा। तो यू कैन आल्सो कॉल दैट दिस अमाउंट इज डबल्ड फॉर द 4 मंथ, फॉर द लास्ट ऑफ 4 मंथ। 4 मंथ में ये जो है वो डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि 96 रुपीज तो 4 मंथ्स का उसका इंटरेस्ट रेट ही बनेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं विच इज अ वेरी हाई ऑफ इंटरेस्ट रेट। सविता आल्सो प्रॉमिस टू वर्क ऑन द फील्ड ऑफ द फार्मर्स लेबर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट एंड सीजन ऑफ 35 रुपीज पर डे, एंड इट वाज आल्सो प्रॉमिस टू Tejpal to give the services and you Savita can work for the 35 rupees per day from the harvesting the land of the Tejpal Singh. And Savita knows she was work very hard of the complete हार्वेस्टिंग ऑन द ओन फील्ड, एंड वो अपने काम पे भी करेगी और उसमें भी करेगी, दोनों में करना पड़ेगा उसको। एंड द हार्वेस्ट टाइम इज वेरी बिजी एज द मदर ऑफ 3 children, she has a lot of household responsibilities. Savita agreed to these tough condition as she known getting a loan is difficult for a small farmer. इस सिचुएशन से आपको पता चलता है कि छोटे फार्मर्स के लिए लोन लेना कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। In the contrast to the small farmers, the medium and the large farmers have been own saving, and from farming they have thus able to arrange for the capital need. How do these farmers have their own saving? You shall find the answer in the next section. And this section story आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास कुछ fill the blanks टाइप क्वेश्चन है, तो आप इनको कर सकते हैं। जैसे among the 3 factors of the production, we found that the labor is the most abundant factor of production. There are many people who are willing to work as the farmer laborers in the village, whereas the opportunities of work limit, they belonging to their landless farmer or dash, they are paid low wages and
लीड अ डिफिकल्ट लाइफ। तो बताइए यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे? दे बिलोंगिंग टू आइदर लैंडलेस फैमिलीज और डैश। They have no land. हाँ, देयर आर नो लैंड, दे हैव पेड लो वेजेस एंड लीड अ डिफिकल्ट लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट, इन द कंट्रास्ट टू द लेबर, डैश Yes, इज sir. द स्केयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। In the contrast to labor, dash is the scale factor of production. स्केयर क्या है हमारे पास उस वक्त में? Yes, sir. स्केयर क्या है? अगर लेबर है हमारे पास तो लेबर के कंट्रास्ट में हमारे पास, Scare. हाँ, स्केयर मतलब कमी, बहुत कम है। बताइए, कैपिटल इज स्केयर, कैपिटल capital is scarce Cap- for the production because capital is needed to farming. And next, cultivated land area is dash. Cultivated land area is dash. Moreover, Yes. yes, Less. क्या क्या, दोबारा बोलिए। कल्टिवेटेड एरिया, Sir, less. आवाज कट के आ रही है, आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। Cultivated land. लैंडलेस, क्या बोल रहे हो यार, आवाज क्लियर नहीं आ रही है तुम्हारी। Less. सर हम्म, काम था लेस। बच्चे आवाज कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कल्टिवेटेड एरिया, कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज अनइरिगेटेड, या ठीक है। नेक्स्ट है, मोर ओवर इवन द एग्जिस्टिंग लैंड इज, मोर ओवर द एग्जिस्टिंग लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड डैश इक्वली अनइक्वली। अनइक्वली। अनइक्वली, ओके, ठीक है। Among the people engaged in the farming, there have the large number of small farmers who have cultivated the small plot of land and live in the condition not much better than the landless farmer laborer. To make the maximum use of existing land, farmer use dash. बताइए। सर डिस्प्ले नहीं है। देखो दोबारा से बताता हूँ मैं, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है हमारे पास, देयर हैज द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स हु हैव कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड एंड live in condition not much better than the landless farm laborer. To make the maximum use of existing land, farmer use dash and dash, both these have to increase the production of crop. Farmer uses the capital for irrigation. fertilizers and Sir, capital and fertilizers. fertilize, वो कैपिटल में ही आ जाएगा, and facility for the irrigation, ठीक है। both these have lead to increase the production of the crop, ठीक है, दोनों से प्रोडक्शन बढ़ेगा। modern farming methods requires a great deal of increasing production, increasing production for the money, great deal of money, and small farmers usually need to borrow money to arrange for the capital and are put to the great distress to repay the loan. Therefore, capital too is a scare factor of production, particularly for the small farmer. Thought both land and capital are scarce. Better is the basic
between two factor of production dash is the natural resources. Natural resources factor of production कौन कौन से हैं? Natural resources of factor of production, two factor of production are natural. First land and second लेबर। no labor नहीं भाई, labor कहाँ है natural? Water. Okay. सर मस्त। यस सर, वाटर, इरिगेशन। हाँ इरिगेशन के लिए चाहिए ना हमें, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड है और वाटर है, और भी मैंने हैं और भी इसी तरीके के हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेयर एज डैश इज मैन मेड, डैश इज मैन मेड, इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज कैपिटल। फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजेशन। to whereas the land is fixed, therefore is a very important that we take good care of land and other natural resources used to the farming, fertilizers हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, सरप्लस फार्म प्रोडक्ट को हमको सेल करना है। देखिए क्या होता है, हमने गोविंद एंड सविता दो एग्जाम्पल लिए, उन दोनों एग्जाम्पल्स के बेस पर हम ये चीज समझते हैं कि दोनों के पास जो डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस है, मतलब जो उनके लिए जरूरी चीजें हैं, जितना मुझे जरूरी है, मान लीजिए मैं 10 क्विंटल्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस करता हूँ और उसमें से मुझे सब्सिस्टेंस के लिए, मतलब अपने लिए 5 क्विंटल्स ऑफ व्हीट चाहिए होता है पूरे होल ईयर के लिए, तो आई कैन सेव द 5 टन व्हीट फ्रॉम ओन एंड रिमेनिंग सरप्लस वाज सेल टू द मार्केट, ठीक है। और रिमेनिंग 5 टन जो व्हीट है उसको मैं मार्केट में क्या कर दूंगा, सोल्ड कर दूंगा, एंड आई एम अर्न सम मनी फ्रॉम द मार्केट फॉर सोल्डिंग द रिमेनिंग सरप्लस ऑफ द व्हीट प्रोड्यूस, ठीक है। तो यहाँ से इसको इनकम हो जाएगी, इस तरीके से जो है वो सोल्ड कर सकता है। इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर यही चीजें लिखी हुई होंगी। लेट अस सपोज दैट द फार्मर हैव द प्रोड्यूस व्हीट फॉर द लैंड एंड यूजिंग द 3 प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्शन, wheat has harvested and the production is complete. What do the farmer with the wheat? The retain of the part of the wheat for the family's consumption and sell the remaining surplus. मैंने यही आपको एग्जांपल दिया कि वो जो है क्या करेगा, अपने लिए जितना उसको जरूरी है वो अपनी फैमिली के कंजम्पशन के लिए रख लेगा, और बाकी जितना सरप्लस बचेगा उसको मार्केट में सोल्ड कर देगा, बेच देगा। एंड स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन was little surplus wheat because their total production is small and is the substantial share is kept of their own family needs, and so is the medium and the large farmers whose the supply of the wheat in the market is largely because of the surplus of the rich farmers are large, so its subsistence is the low and its surplus are the more, and they can sell more into the market and more supply for the rich farmers and the small supply for the पुअर फार्मर्स। तो हम कह सकते हैं इस तरीके से पुअर फार्मर से कम सप्लाई जाएगी और जो रिच फार्मर्स होंगे उनसे सप्लाई ज्यादा जाएगी मार्केट के अंदर, जिससे मार्केट को ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यही सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसी तरीके से अगर हम तेजपाल की बात करते हैं, तेजपाल इज द लार्जर फार्मर हैज द सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स, 350 क्विंटल्स की इसके पास सरप्लस जो है वो आता है, जो कि लार्ज नंबर ऑफ सरप्लस है, काफी बड़ा एक सरप्लस इसके पास बचता है। एंड ही कैन सेल द सरप्लस व्हीट ऑफ द रायगंज मार्केट एंड गुड अर्निंग, तो यहाँ से इसकी एक अच्छी अर्निंग हो जाती है। तो इसके बारे में यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। एंड 40 मिनट बच्चे पूरे होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता ही है जूम पर 40 मिनट की ही क्लास होती है, तो 40 मिनट लगभग फिनिश होने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी से हमें आगे पढ़ना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी I will discuss in the next classes and other types of activity other than the farming in the Palampur village. Like आप कह सकते हैं कि डेयरी फार्मिंग हो गया आपके पास, या अदर कॉमन एक्टिविटीज गार्डनिंग हो गया, या फिर आपके पास हो गया यहाँ पर फिशिंग हो गया, या फिर आपके पास एनिमल हस्बेंड्रीज हो गया। दिस इज द अदर टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ये सब जो है मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा ये चैप्टर पूरा फिनिश कर दूं, क्योंकि छोटे छोटे 3-4 टॉपिक्स ही बचे हैं, ज्यादा टॉपिक्स अभी हमारे पास नहीं बचे हैं, ठीक है। हाँ बोलिए रुशान।
हाँ रुशान, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। नो सर। नहीं नहीं, आपका हैंड रेज हुआ ना, इसलिए मैंने सोचा। नहीं सर, वो धोखा से हो गया था सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया, आप दोनों को, मनीष एंड रुशान? यस सर। यस सर। यस, चलिए। तो जब यस हम सर। इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आगे जाकर, तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा मुझे कितना आया, आपको कितना नहीं आया, ठीक है। तो टाइम फिनिश होने वाला है, आपको पता ही है 40 मिनट की क्लास हो पाती है इसके पास। यस सर। तो चलिए फिर, बाकी आप पढ़ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? ठीक ओके है। सर। थैंक यू सर। ओके ओके। चलिए मैं फिनिश करता हूँ फिर क्लास को।